नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, its chapter 35th verse. भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन. Translation. Yet others say that you appeared for the sake of rejuvenating the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned souls suffering from material pangs might take advantage and get liberation. Purport. In the Bhagavad Gita, the Lord asserts that He appears in every millennium just to reestablish the way of religion. The way of religion is made by the Supreme Lord. No one can manufacture a new path of religion, as is the fashion for the certain ambitious persons. The factual way of religion is to accept the Lord as the supreme authority and thus render service unto Him in spontaneous love. A living being cannot help but render service because he is constitutionally made for that purpose. The only function of the living being is to render service to the Lord. The Lord is great and living beings are subordinate to him. Therefore, the duty of the living being is just to serve him only. Unfortunately, the illusioned living beings, out of misunderstanding only, become servants of the senses by material desire. This desire is called avidya or nescience, and out of such desire, the living being makes different plans for material enjoyment centered about a perverted sex life. He therefore becomes entangled in the chain of birth and death by transmigrating into different bodies on different planets under the direction of the Supreme Lord, unless therefore one is beyond the boundary of the nescience, one cannot get free from the threefold miseries of material life, that is the law of nature. The Lord, however, out of his causeless mercy, because he is more merciful to the suffering living beings than they can expect, appears before them and renovates the principles of devotional service comprised of hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating, and surrendering unto him. Adoption of all the above mentioned items or any one of them can help a conditioned soul get out of the tangle of nescience and thus become liberated from all material sufferings created by the living being illusioned by the external energy. This particular type of mercy is bestowed upon the living being by the Lord in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम जो कंडीशनड मतलब बद्ध जीव, कंडीशनड सोल्स का मतलब है बद्ध जीव, हम सभी बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान जो हमारा नैमित्तिक स्वभाव, जो हमारा स्वाभाविक है, जो हमारे लिए वास्तविक स्वभाव है जो हमारा, वह है भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और उस स्वभाव को त्याग कर हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं। इसी वजह से हम बद्ध हैं, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों की तृप्ति की वजह से हम बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बार बार हमें कर्म करने पड़ते हैं और कर्म के फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। क्यों? बस केवल इतनी सी बात है कि मेरे मन में इच्छा है कि मेरी इंद्रियों को तृप्ति मिले। मेरी इंद्रियों के प्रति तृप्ति की अभिलाषा ही मुझे इस भौतिक संसार में चक्र लगवा रही है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, पुनः 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 पुनः। यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है सेक्स लाइफ, मैथुन। इसलिए इस संसार को एक और नाम दिया गया, मैथुन्य आगार। मैथुन्य आगार का मतलब है जहां पर केवल ये संसार का जो कारण है वो मैथुन है, सेक्स लाइफ। उसी की वजह से ये सब चल रहा है। तो इसका मतलब है कि सेक्स लाइफ छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कि भगवान तो कहते हैं कि जो धर्म के अविरुद्ध है, अर्थात जो धर्म के अनुसार है, वह सेक्स लाइफ में स्वयं हूं। तो कृष्ण ये कह रहे हैं, तो सेक्स लाइफ यहाँ छोड़ने की बात नहीं हो रही है, बट भगवान कह रहे हैं कि आप जो करें रेगुलेटेड करें, स्पेशली फॉर गृहस्थ आश्रम। जो ब्रह्मचारी हैं, दे हैव कंप्लीटली रिनाउंस, बिकॉज कंप्लीटली रिनाउंसिंग, जो सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, दे आर ऑल्सो ग्रेट। बिकॉज इस मैथुन की इच्छा को संसार में त्याग पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही व्यक्ति को एक सर्टेन एज प्राप्त होती है, पुरुष हो या स्त्री हो, जैसे ही टीन एज के ऊपर बढ़ने लगते हैं, तुरंत उनके मन में ये डिजायर्स डेवलप होने लगते हैं। नेचुरल है, क्योंकि अनेक अनेक जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं, लाखों लाखों सालों से। तो ये नेचुरली होने लगता है। लेकिन हमारा वास्तविक स्वभाव है,
हमारा, ऑल्दो हम इसको नेचुरल बोल रहे हैं बिकॉज अनेक अनेक सालों से हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये हमारा नेचुरल नहीं है। हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वो है भगवान की सेवा करना, भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, ना कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लग जाना। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं गुरुवर्गों के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से, तब हम कोशिश करते हैं, चलो अभी समझ में आया, हम मुझे इसको रोकना है। राइट, तो रोकने का तरीका गृहस्थ आश्रम में क्या है, उसको सत्कार्य में लगाना, कि भगवान के भक्तों की वृद्धि के लिए, वैष्णवों की वृद्धि के लिए संतानों को उत्पन्न करना। गर्भाधान संस्कार होता था, इसीलिए गर्भाधान संस्कार अब कोई करता नहीं है, बट हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार निश्चित किए गए हैं, जिनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन का प्रारंभ होता है, वो गर्भाधान संस्कार। तो ये कोई इंजॉयमेंट का तरीका नहीं होता था, सेक्सुअल इंजॉयमेंट, ये तरीका होता था एक एक पुण्य आत्मा को इस धरती पर बुलाने का तरीका होता था। तो उसमें दोनों पति पत्नी संकल्प लेके फिर मैथुन में जाते थे, ताकि वो भगवान के किसी भक्त को इस संसार में ला सके। तो वो एक तरीका गर्भाधान संस्कार का, जो अब समाज भूल चुका है, अब केवल एंजॉयमेंट के पर्पस के लिए लगा है, तो वो तरीका त्याग दिया है। परंतु क्या करते हैं भगवान, भगवान इसीलिए बार बार आते हैं, बार बार आते हैं ये बताने के लिए कि आपको यहाँ से निकलना है। और आपको निकलने के लिए साधन भी बताते हैं, क्या है, भगवान एक तो कहते हैं ये जेल है, जेल से निकलना है, फिर कहते हैं जेल के लिए मैं यहाँ की वो भी लाया हूँ, जेल की दीवार फांद के निकलने के लिए तुम्हारे लिए सीढ़ी भी लाया हूँ। तो वो सीढ़ी क्या है हमारी, कि हम चढ़ सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करके, वो सीढ़ी है। तो वो भगवान दोनों चीज लेके आए हैं आपके लिए, एक तो बता ज्ञान लेके आए हैं, दूसरा साधन भी लेके आए हैं। और साध्य क्या है, साध्य मतलब जो प्राप्त किया जाना है वो क्या है, बाहर निकलेंगे तो कहाँ पहुंचे, बाहर भगवान हाथ फैलाए खड़े हैं, आ जाओ मेरी गोदी में कूद पड़ो, तो हम भगवान के गले मिल जाएंगे। यस, सिद्धा प्रभु। एक सेकंड। रोज और कोई पढ़िए, मैं यहाँ पे बुक रीडिंग हो रहा है, उनको डिस्टर्ब होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं ठीक। सुन रहा हूँ बस। हाँ, प्रतीक प्रभु आप। रवन्ति गायन्ति गृह्णन्यभीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तव हे वितञ्जना त एव पश्यन्ति चिरेण तावङ्क भ्रमण भवप्राह भवप्रवाहोरणं पदाम्बुजम्. O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. Purport. The Supreme Lord Shri Krishna cannot be seen by our present conditional vision. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life full of spontaneous love of Godhead. When Shri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the supreme personality of Godhead. Materialists like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, and Shishupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision. This necessary qualification is developed by the process of devotional service only, beginning with hearing about the Lord from the right sources. The Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general, but in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord face to face. The reason is that the first item, Shravana, is very important. If hearing is from the right sources, it acts very quickly. Generally, people hear from unauthorized persons. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualifications, but because they do not follow the principle of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time. Sometimes these texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. When the hearing process is perfect and complete, the other processes become automatically perfect in their own way.
There are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from his dealings with the Pandavas. There are many other pastimes of the Lord in connection with his dealings with the Asuras and others. And in the 10th canto, the sublime dealings with his conjugal associates, the gopis, as well as his married wives at Dwarka are mentioned. Since the Lord is absolute, there is no difference in transcendental nature of each and every dealing of the Lord. But sometimes people, in an unauthorized hearing process, take more interest in hearing about his dealings with the gopis. Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. So a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges in such hearings. One must hear about the Lord from the very beginning, as in the Srimad Bhagavatam or any other scriptures, and that will help the hearer attain perfection by progressive development. One should not therefore consider that his dealings with the Pandavas are less important than his dealing with the gopis. We must always remember that the Lord is always transcendental to all mundane attachment. In all the above mentioned dealings of the Lord, he is the hero in all the circumstances, and hearing about him or about his devotees or combatants is conducive to spiritual life. It is said that the Vedas and Puranas, etc., are all made to revive our lost relation with him. Hearing of all these scriptures is essential. तो जैसे पीछे पीछे वाले श्लोक में भी ये बताया गया कि जो जो प्रोसेसेस हैं बताए थे शिल प्रभुपाद ने, और उनमें से कोई एक भी प्रोसेस अगर आप चुन लेंगे तो उससे भी अपना जीवन परफेक्ट कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नविधा भक्ति है, 9 प्रकार के भक्ति के चरण बताए गए हैं, भक्ति के प्रकार बताए गए हैं, या भक्ति के, ये चरण कहना ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि ये श्रवणम से प्रारंभ होता है। श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर भगवान के नाम का जो कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, अपनी आंखें बंद करके बैठना, कभी कोई भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, जैसे लक्ष्मी जी जैसे करती हैं, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, अर्चना करना भगवान से, प्रार्थनाएं करना, वंदनम, भगवान की वंदना करना, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना। अर्चना में पूजा भी आ जाता है, तो भगवान की डिटी वर्शिप वगैरह करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की दास रूप में सेवा करना। साख्यम, भगवान की सखा रूप में सेवा करना। आत्मनिवेदनम, जैसे बलि महाराज ने आत्मनिवेदन, संपूर्ण समर्पण कर दिया भगवान के सामने, जो भी है मेरा सब कुछ आपके है, तो वह पदे आपके चरणों में रखता हूँ। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, आपके चरणों में सब कुछ सौंप दिया है मैंने। जो भी मेरा जे कुछ मोर, जो भी मेरा है वो सब आप ले लीजिए। ये क्या है, वो आपका ही तो है। आर पिलो तुआ पदे नंद किशोर, मानस देह गेह जे कुछ मोर। मानस, जो मन, देह और गेह, ग्रह, जो मेरा है, जे कुछ मोर, जो कुछ मेरा है मुझे लगता है, आर पिलो तुआ पदे नंद किशोर, वो सब मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो हमारे जो आचार्य हैं वो उस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो इनमें से कोई भी प्रोसेस हम ले सकते हैं, लेकिन हर प्रोसेस पे सावधानी रखनी है। एक भी प्रोसेस में आपने जरा सा मिसडायरेक्शन किया, आप पूरा मिसडायरेक्ट होते चले। जैसे फ्लाइट है, अगर फ्लाइट आपने ली, लेकिन फ्लाइट ने नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उसका संपर्क हमेशा बना रहता है। कोर्स करेक्शन अगर थोड़ा सा भी उसने, थोड़ा सा भी टेंजेंशियली निकल गया तो वो पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो उसको बताता रहता है कि अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपना सेट करके चलो, इधर से चलो। इसी प्रकार से हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या है, एटीसी। वो हमारा क्या है, वो है हमारे शास्त्र गुरु, हमारे आचार्य वर्ग, जो हमें ज्ञान, हम उनसे हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने श्रवणम किया, श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्रवण किससे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है अवैष्णव मुखोद्गीर्णा, अगर आप एक अवैष्णव के मुख से जो भी वचन निकल रहे हैं और जो भगवान की लीलाओं का ही वर्णन कर रहा है, अवैष्णव है, भगवान का भक्त नहीं है, स्वयं कुछ पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के मुख से हरि कथा सुनने से भी वो इस प्रकार से हो जाता है जैसे दूध में किसी ने जहर, किसी सांप ने छू दिया हो। तो दूध, कोई सांप अगर दूध को छू दे तो वो क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। तो एक अवैष्णव जब भगवान की हरि कथा करता है तो उसको जहरीला कर सकता है।
जैसे कि कुछ लोग हैं, आप सुनेंगे, बहुत सारे लोग हैं संसार में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन केवल जो है रास लीला पे फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? टीआरपी मिलती है। आजकल सब कुछ जमाना टीआरपी का है, फॉलोअर मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर मिलेंगे जब आप रासलीला बताएंगे। क्यों? क्योंकि रासलीला में व्यक्ति, जो जो कामी व्यक्ति है, वो तुरंत ही रासलीला में अपने आप को जोड़ लेता है, स्वयं को भगवान कृष्ण मान लेता है, अपनी गर्लफ्रेंड्स को सारी गोपियां मान लेता है। क्योंकि उनके अंदर का जो काम भाव है, जो लस्ट है, उसको वो एग्रवेट करते हैं। और ये बेचने का तरीका है। कोई भी मार्केट में सामान बेचा जाता है, तो वो बेच रहे हैं आदमी का परफ्यूम, लेकिन दिखा रहे हैं कि ये परफ्यूम लगाओगे तो 5 लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगी। तुमने दांत एक मंजन जो किया है, वो मंजन करके तुम्हारे दांत ऐसे चमकने लगेंगे, लड़कियां देख के तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। आप ये चड्डी पहन लेंगे तो लड़के आप, जैसे आप चड्डी पहन के ही बाजार में घूमने वाले हैं, आपके पीछे लड़कियां भागने लगेंगी। तो क्या है ये? दे सेल लस्ट एक्चुअली। व्हेन यू सेल लस्ट, यू कैन अट्रैक्ट लस्टी पीपल। सो दैट्स हाउ दे डू इन भागवतम ऑल्सो। दोज हु आर अवैष्णव, जो जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो केवल उनका एक ही उद्देश्य है, इनसे कैसे भी मुझे पैसा मिल जाए, मुझे पद मान प्रतिष्ठा मिल जाए, या कुछ और भी ज्यादा। जो कामी पुरुष होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे और स्त्रियां मिल जाएंगी, रासलीला में वो स्वयं कृष्ण बन जाते हैं, और अपनी जो शिष्याएं उन्हें जो है गोपियां बना के नचवाते हैं। उसके बाद तो आप जानते हैं क्या क्या होता है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ टुडे सोसाइटी। दैट्स वाई अवैष्णव मुखोद्गीरात, ये इसको कहते हैं। जो सर्प है वो दूध को जब छू ले तो वो जहरीला हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें कभी नहीं सुनना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल इन अवर हियरिंग। लाइक दिस, एट एवरी स्टेप ऑफ डिवोशनल सर्विस वी हैव टू टेक केयर। किससे लेना है, किससे देख, किससे सुनना है, और क्या 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 पूजा अर्चना करनी है। लोग जो है गोपी का रूप धर के डांस करने लगते हैं। अब गोपी का रूप धर के वो सहजिया कहलाते हैं। तो उनसे हमें वो क्या करते हैं, स्वयं को गोपी मानने लगते हैं। बट आप ऐसे इमेजिनेशन करके नहीं प्राप्त कर सकते, इमेजिनेशन करके आप भटक जाएंगे। तो एक ये पॉइंट है इस परपट में बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा पॉइंट ये है कि भगवान को जो लोग कहते हैं कि मैं जब आंखों से देख लूंगा तभी मानूंगा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। कहाँ? भगवान को किसने देखा है? भगवान को किसने देखा है? अरे भगवान को जिन्होंने देखा था, उन्होंने भी नहीं माना कि भगवान भगवान है। शिशुपाल ने देखा, जरासंध ने देखा, दुर्योधन ने देखा, कंस ने देखा, हिरण्यकश्यप ने देखा, रावण ने देखा, सबने देखा। उन्होंने तो नहीं माना भगवान भगवान है। तो आप कौन सा मान लेंगे देखने से? तो ये जो तर्क दिया जाता है ना कि भगवान दिखाई नहीं देते इसलिए हमने नहीं मानते, उसका वो तर्क इसलिए दिया जाता है कि ये कहना चाहता है वास्तव में कि मैं अपने काम में इतना डूबा हूं, मैं इंद्रिय तृप्ति में इतना डूबा हूं कि तुम मुझे असंभव करके दिखा दोगे तो मैं मानूंगा। असंभव, भगवान दिख भी जाएंगे व्यक्ति को, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं मानेगा। तो इसलिए ये केवल अपने इंद्रिय तृप्ति को न त्यागने का एक कारण ढूंढने का तरीका है ये समाज का। और दूसरा है, दूसरी चीज जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें क्या राइट सोर्स से हियरिंग करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और तीसरी चीज है, भगवान की जो डीलिंग्स है वो अपने भक्तों के साथ, सभी भक्तों के साथ समान रहती हैं, लेकिन सबका रस अलग अलग है। तो रस जो है, गोपियों का रस है माधुर्य रस, और पांडवों का रस है साख्य रस, मान लीजिए अर्जुन का जैसे साख्य रस है। तो ये दोनों डीलिंग्स में क्या बड़ा है क्या छोटा है, यह करना भी गलत है, यह करना भी मूर्खता है कि माधुर्य रस ऊपर है, साक्ष्य रस नीचे है। ऐसा नहीं कहना, एक भक्त को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। भगवान की सभी डीलिंग्स ट्रांसेंडेंटल हैं, दिव्य हैं, एंड सभी का इक्वल इफेक्ट होता है। अगर आप साक्ष्य रस में हैं तो आप साक्ष्य रस में भी भगवान को उतने ही प्रिय हैं जितना जो गोपियां माधुर्य रस में है वो भगवान को प्रिय है। तो भगवान का प्रेम उनके रस से तुलना नहीं किया है, आपस में रसों की तुलना नहीं की जा सकती। जैसे आप देखेंगे, मैं कल यहाँ पे एक घर में गया था किसी के, तो उनसे बात कर रहा था, वो बता रहे थे यहाँ मैं अभी वडोदरा में हूँ, तो यहाँ पर द्वारकाधीश जो भगवान है उनकी पूजा की जाती है। तो एक और लेडी उनके सोसाइटी में आई, तो सोसाइटी में प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने, वो थी मथुरा से, तो वो उन्होंने बार बार बोला कि हम तो मथुरा वाले हैं, और हमारे तो भगवान, हमारे कान्हा जी हैं, मथुरा के कान्हा जी हैं, मथुरा वाले बहुत प्रिय हैं, मथुरा वालों को बहुत प्रिय है भगवान, ये वो। तो द्वारका वाले
यानी यहाँ वाले लोग जो थे वो चिढ़ गए उनसे, चिढ़ गए क्योंकि ये मथुरा की बड़ाई कर रहे थे। तो मैंने कहा वास्तव में दोनों लोग इसलिए आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि वो भगवान को केंद्र नहीं मान रहे, वो स्वयं को केंद्र मान रहे हैं। क्योंकि मैं मथुरा से हूं इसलिए मथुरा के कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। वो सोच रहे हैं क्योंकि मैं द्वारका से हूं इसलिए द्वारका के कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। तो लोग, दो धर्मों के बीच में लड़ाई होती है कि मैं जिनको भगवान बोलता हूँ जो वो श्रेष्ठ है, मेरे अल्लाह श्रेष्ठ है, मेरे गॉड श्रेष्ठ है, तुम्हारे कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है। और ये दो धर्मों के बीच में है। एक दूसरा स्तर है, जब एक धर्म के अंदर वैष्णव कहते हैं मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव से श्रेष्ठ हूँ, शैव कहते हैं नहीं नहीं तो शैव जो है वैष्णव से श्रेष्ठ है, उन दोनों के बीच में भी लड़ाई होती है। अभी एक ही भगवान के दो भक्त हैं, एक कृष्ण है ब्रज के कृष्ण उनके भक्त हैं, और एक जो है द्वारका के कृष्ण है उनके भक्त हैं, उनके बीच में भी लड़ाई हो रही है। तो ये केवल तब होता है जब व्यक्ति वास्तव में स्वयं को केंद्र मानता है। दो धर्मों के बीच भी इसीलिए लड़ रहे हैं, तो शैव और वैष्णव भी इसलिए लड़ रहे हैं जब वो इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं स्वयं केंद्र हूं, मैं भगवान हूं। वास्तव में उनके मन में यही है, मैं भगवान हूं इसलिए जिनको मैं भगवान मानता हूं वो श्रेष्ठ होंगे। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, जब आत्म केंद्रित हो जाता है, तो वो इस प्रकार से तुलनाएं करने लगता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम यू विल सी इन टुडेज वर्ल्ड। अभी ये बहुत बढ़ गया है एंड लोगों के पास क्योंकि किसी ने जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के प्रत्येक रूप में पूजा करता है, भगवान के प्रत्येक रूप को समान मानता है। भगवान का रूप वो चाहे मथुरा के कृष्ण द्वारका के कृष्ण हो, लेकिन उसका वो कहता है मेरा जो लगाव है वो मेरा वृंदावन के कृष्ण से है। तो मैं वृंदावन के कृष्ण से लगाव है, लेकिन मैं भगवान का वो रूप में ही हूं, मैं उनके भक्तों की भी ऐसी ही सेवा करूंगा, ऐसे ही पूजा करूंगा जैसे मैं भगवान की करता हूँ, जो द्वारकाधीश है उनके भक्तों की। तो ये एक सच्चा भक्त है वास्तव में, क्योंकि वो समझ चुका है कि मैं स्वयं को केंद्र नहीं हूं, भगवान केंद्र है। ओके। So one should not therefore consider that dealings with Pandavas are less important than the dealings with the gopis. We must always remember the Lord is always transcendental to all mundane attachment. हम जो तुलना करते हैं ना वो केवल हमारा मंडेन अटैचमेंट है, इसकी वजह से हम तुलनाएं करते हैं। ये तुलना भौतिक बुद्धि की बीमारी है। तुलनाएं करना, भौतिक बुद्धि जो है इस प्रकार से तुलना करने में लग जाती है। तो भगवान सबके नायक हैं, तो अलग अलग रूप में भगवान अब अपने भक्तों से अलग अलग प्रकार से डील करते हैं। ओके। तो इसीलिए हम सबको भगवान का नाम जब बहुत ध्यान से करना चाहिए, ताकि हम जो है भगवान के इस प्रकार के तुलनाएं आपस में ना करने लगे, अलग अलग भक्तों से लड़ने लगे, अलग अलग भक्तों से हम जो है किसी को नीचा दिखाने लगे। सो लेट अस चैंट वेरी इनोसेंटली विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। So actually, when we chant Hare Krishna, that time either we chant and we or we hear. तो दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए हमको। आप अगर चैंटिंग जब कर रहे हैं तो श्रवण मत कीजिए, श्रवण कर रहे हैं तो चैंटिंग मत कीजिए। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रभु जी, हाँ। लेकिन हम लोग जब आपस में चैंट करते हैं अभी, तो किसी एक का म्यूट रहता है, किसी किसी एक का अनम्यूट रहता है, तो वो चैंट करता है तो वो भी सुनाई देता है। तो ये तो फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर हम लोगों के लिए कि हम लोग क्या करें, कि मतलब हम लोग चैंट करें या सुने। लीला लीला सुबह श्रवण सुबह नहीं करना चाहिए, लीला श्रवण नहीं, लीला नाम श्रवण, श्रवण अच्छा अच्छा, नाम श्रवण करते रहेंगे। ओके प्रभु जी, ओके। क्योंकि वो साधना का दो अलग अलग प्रोसेस हैं, वो दोनों मिक्स नहीं कर सकते। ये वैसे ही हो गया कि आप आरती करते हुए प्रसादम खाते जा रहे हैं। दोनों प्रोसेस सही है, दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बट दोनों प्रोसेस को अलग अलग करना है। आरती करते हुए हम प्रसाद नहीं खा सकते, राइट। तो इसी प्रकार से कीर्तन करते हुए श्रवण, श्रवण का मतलब लीला श्रवण यहाँ पर है। नाम जप और नाम श्रवण कर सकते हैं, बट वो भी धीमा होना चाहिए। जैसे आप सुन रहे हैं, जैसे शिल प्रभुपाद के भी जप लगा लेते हैं कई डिवोटीज, बट जब लगाते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट लगाते हैं, ताकि अपना नाम जरूर सुनाई देना चाहिए। आप जो नाम जप रहे हैं वो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, वो जरूर सुनाई देना चाहिए। और जो बाकी हैं वो एटलीस्ट हमें ये सहायता करते हैं। हम अपना केवल अकेले अकेले करेंगे तो हम नींद आ जाएगी कभी कभी, सबके साथ करेंगे तो थोड़ा नींद आने की संभावना कम है। ठीक है। हरे कृष्ण।